قومی ایکشن پلان پر عمل درآمد کا معاملہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نیشنل ایکشن پلان کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شرکت کرے گی۔ امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کے آپریشنز کے نتائج پر بھی غور ہوگا۔ پاک افغان سرحدی امور اور خارجیوں کے خلاف آپریشنز پر بھی بات ہوگی۔ صوبے میں امن و امان سے متعلق اپنی رپورٹس پیش کی جائے گی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل کے غیر مستقل رکن کے طور پر ذمہ داریاں سنبھالی۔ ایڈیشنل مستقل مندوب عاصم افتخار کی پرچم رکھنے کی تقریب میں شرکت۔ پرامن اور محفوظ دنیا کے لیے اجتماعی کوششوں میں کردار ادا کرنے کا عزم کہا۔ پاکستان مظلوم اقوام کے لیے آواز اٹھاتا رہے گا۔ پاکستان میں سیکیورٹی کی صورتحال بہت بہتر ہے۔ ہم پرامن اور مستحکم افغانستان چاہتے ہیں۔ پاکستان سلامتی کونسل میں 8ویں بار غیر مستقل رکن منتخب ہوا۔ پاکستان کو جنرل اسمبلی کے 193 رکن ممالک میں سے 182 ووٹ ملے تھے۔ پاکستان 2 سال تک اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ دیگر غیر مستقل ارکان ڈنمارک، یونان، پاناما اور صومالیہ کے پرچم بھی لگائے گئے۔ مستقل مندوب منیب اکرم نے کہا کہ سلامتی کونسل میں دنیا کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فعال کردار ادا کریں گے۔ بالائی علاقوں میں بارش اور برف باری۔ مظفر آباد میں بادل برس پڑے۔ وادی نیلم، لیپا میں برف باری۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ بادل خوب برسے۔ قلعہ عبداللہ میں برف باری۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ گلگت بلتستان میں بھی غضب کی سردی۔ پارہ نقطہ انجماد سے بھی کئی درجے نیچے۔ کردو کھرمنگ میں وقفے سے برف باری۔ بیربارہ لارولوائی میں ٹنل میں 1 فٹ تک برف باری ریکارڈ۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں دھند کے ڈیرے۔ موٹر وے کئی مقامات سے بند۔ دھند کے باعث لاہور ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر۔ ٹیسٹ سیریز برابر کرنے کا مشن۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ آج شروع ہوگا۔ کپتان شان مسعود کا کہنا ہے کہ ٹیسٹ دیکھ کر فائنل 11 کا انتخاب کریں گے۔ 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان میں جو انفلیشن ہے وہ 2018 کے بعد وہ 4.1% پہ CPI ہے۔ ہماری ایکسپورٹس میں امپرومنٹ ہوئی ہے۔ ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز $4 بلین سے اب $12.5 بلین پہ پہنچ گئے ہیں۔ اسی طریقے سے پالیسی ریٹ بینکوں کا 13% پہ ہے۔ اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے سب سے اونچی سطح پہ ہے۔ ترقی اور خوشحالی کا سفر تبھی طے ہوگا کہ ملک کے اندر ایک استحکام ہو۔ تارا چنار میں اب کل ایگریمنٹ سائن ہوا ہے، تو درجہ بدرجہ جنہوں نے بھی اس میں کنٹریبیوشن کی ہے وہ سب مبارکباد کے لائق ہیں۔ معاشی استحکام سیاسی استحکام سے جڑا ہے۔ خوشحالی اور ترقی کے لیے سیاسی استحکام ناگزیر ہے۔ ضروری ہے کہ ہم متحد ہو کر پاکستان کو معاشی ٹائیگر بنائیں۔ بدقسمتی سے دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے۔ دہشت گردی کا سر کچلے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دہشت گردی کا سر کچلنے کے لیے سب کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ امن و امان کا معاملہ چیلنج بن چکا ہے۔ ملک کی ترقی کے لیے امن کا قیام ناگزیر ہے۔ پارہ چنار امن معاہدہ خوشائند ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اجلاس میں اظہار خیال۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر، اعلیٰ سول اور عسکری حکام شریک ہوئے۔ وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کی بھی شرکت۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں اہم فیصلے۔ آرمی چیف نے معاشی استحکام کے لیے حکومت کے اقدامات کے لیے پاک فوج کی حمایت کی پختہ عزم کا یقین دلایا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ ایپیکس کمیٹی کا زراعت، IT، مائننگ، سیاحت کے شعبوں میں سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے اقدامات تیز کرنے کا فیصلہ۔ اقتصادی ترقی کے لیے ملک میں معاشی سرگرمیوں کو بڑھانے کے عزم کا اعادہ۔ ایپیکس کمیٹی کا ملک بھر میں اسپیشل اکنامک زون کا جال بچھانے پر زور۔ 4 صوبوں میں اسپیشل اکنامک زونز قائم ہونے چاہئیں۔ فورم کا اکنامک زون سے متعلق قوانین کو آسان بنانے پر زور۔ ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔
टी आई का सियासी कैदियों पर मजीद केसेस कायम न करने का मुतालबा। पी टी आई रहनुमाओं का कहना है जो केसेस हैं इन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। बानी पी टी आई समेत तमाम सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस कायम न किए जाएं। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल। स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक की ज़ेर सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के गंडापुर भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के सामने दो मुतालबात रख दिए, 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात पर जुडिशल कमीशन के क़याम और बानी पी टी आई समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। मैं बैकडोर वाला हूँ नहीं, मैं हूँ खुली किताब, मैं खुल के खेलता हूँ। तो जब चीजें सामने आएंगी तो खुल के आएंगी। कुरम के जो मामला हैं वो आज से नहीं है, ये 50 साल से वहाँ पे इस तरह के मामला बार बार उभरते हैं और वो कोई मसला जो है दहशतगर्दी का नहीं है, वहाँ पे लोकल घुस का एक मसला है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े बेहतरीन तरीके से ग्रैंड जिला बनाया और तमाम लोगों को बिठा के एक मुशावरत करके उनके साथ एक बहुत ज़बरदस्त एक मुआहिदा हो रहा है और इंशाल्लाह ये मुआहिदा जो है ये मुकम्मल एक देर पा इंशाल्लाह हल होगा इसका। बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठकर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। जब मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह चीज़ें ठीक होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुज़ाकरात बानी के हुक्म पर शुरू हुए, मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी ही फैसला करेंगे। अगर 9 मई के मुल्ज़िमान को छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। किसी को सजा देना और गोलियां मारना हल नहीं होता। रियासत माँ जैसी होती है। रियासत का काम नौजवानों की इस्लाह करना होता है। हमारे कारकुनान ने जमहूरियत के लिए खून बहाया। कुरम के वाक़यात आज के नहीं 50 साल से चले आ रहे हैं। कुरम के मामलात को खुश असलूबी से हल किया। गवर्नमेंट की तरफ से तो मैं बिल्कुल पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कत्तन कोई ऐसी ऑफ़र जो है वो नहीं की गई। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कोई भी नहीं ये ऑफ़र कर रहा, ये इमरान खान साहब सियासत कर रहे हैं, वो सियासी बयान दे रहे हैं। बानी पी टी आई बनी गाला मुंतकिल करने पर सियासत कर रहे हैं। हुकूमत की जानिब से बानी पी टी आई को बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। कहा, यह बानी पी टी आई का सियासी बयान है, बनी गाला मुंतकिल करने की कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। बानी पी टी आई के मुकदमात अदालतों में ज़ेर समात हैं, हुकूमत के पास रिहा करने का इख्तियार ही नहीं। बानी पी टी आई अदालतों से ही रिहा हो सकते हैं। सेक्रेटरी इत्तलाआत पी टी आई शेख वक़ास अकरम ने कहा, बानी पी टी आई पेशकश से मुतालिक बात दुरुस्त कर रहे हैं। हर चीज़ का एक वक्त होता है। बानी पी टी आई ने मुज़ाकरात का दरवाज़ा खोला है। बानी से मुशावरत करना हमारा हक है। बानी पी टी आई से मुलाकात कराना कोई गैर कानूनी काम नहीं। सिचुएशन इतनी गंभीर है कि उनसे मिले बगैर चीज़ों को तफसीली डिस्कस किए बगैर आगे नहीं जा सकता कि तुसी एक बार दोबारा मिला दे। इस पे कौन सी बात है? एक्सेस तो कमेटी को तो कम से कम होनी चाहिए। चीज़ों का हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो फैसला इमरान खान साहब ने करना था। और देखें ना, अब इम्तिहान तो हमारे पे है ना, हमारे लोगों पे आज भी 50-50 FIR हैं और फिर भी हमें खान साहब ने एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खोल के कहा कि नहीं जो है ये बात करनी है, तो फिर बाबर मजबूरी हुए ना। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस एकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान, मोहसिन रफ़ी का एकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना, ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलियात के मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस एकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि नेशनल पुलिस एकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। ASPs के कोर्स को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। कतर के करीब सबमरीन केबल में खराबी, पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर होने का खदशा। इंटरनेट ब्रॉडबैंड सारिफीन को मसाइल हो सकते हैं। AAVN केबल पाकिस्तान को आलमी इंटरनेट से जोड़ती है। AAE1 केबल 7 ज़ेर समंदर केबल में से एक है। सूरत हाल की निगरानी की जा रही है। टीमें खराबी दूर करने की कोशिश कर रही हैं। तर्जुमान PTA।
मिलिट्री कोर्ट से रिहाई पाने वाले मुजरिमान की रहम की पिटीशन सामने आ गई। मिलिट्री कोर्ट से सजा याफ्ता 19 मुजरिमान को रहम की पिटीशन मंजूर होने पर रिहा कर दिया गया। मुजरिमान की रिहाई दायर करदा रहम की पिटीशन पर कानूनी कार्रवाई के बाद अमल में लाई गई। सनह 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफ़ी की पिटीशन दायर की। मुजरिमान ने अपनी रहम की पिटीशन में 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने का इतराफ़ किया। 19 मुजरिमान की पिटीशन खालिस्तान इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कानून के मुताबिक मंजूर की गई। सजाओं की मुआफ़ी शफाफ कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है। कुरम में अमन माहिदा खुशाइंद है। माहिदे पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। कुरम के लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। सूबाई हुकूमत कुरम के मुतासरीन की मदद करे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के शोहदा के लिए 1 करोड़ रुपए का ऐलान करे। सूबाई हुकूमत संजीदा होती तो इतने धरने ना होते। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, मुल्क दुश्मन अनासिर पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं। अफगानिस्तान में आलमी ताकतों को छोड़ा गया असलहा पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। पड़ोसी मुल्क में बदअमनी का असर पाकिस्तान पर भी होता है। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती नुमाइंदों पर तशद्दुद काबिल अफसोस है। बल्दियाती नुमाइंदों के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। गवर्नर हाउस में जल्द बल्दियाती नुमाइंदों का कन्वेंशन मुनक़िद होगा। बल्दियाती नुमाइंदे सवाल कर रहे हैं कि डंडे क्यों बरसाएं। लंदन में सारा शरीफ के कातिल वालिद पर जेल में हमला। 2 कैदियों ने इरफान शरीफ पर घात लगाकर हमला किया। हमलावरों ने कैन के ढक्कन से सारा शरीफ के वालिद की गर्दन और चेहरे को जख्मी किया। गार्ड्स ने फौरी पहुंचकर इरफान शरीफ को कैदियों के तशद्दुद से बचाया। सारा शरीफ के वालिद को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़या साउथ लंदन के बेल्फास्ट जेल में हुआ। इरफान शरीफ को सारा शरीफ के कत्ल के इल्ज़ाम में 2 हफ्ते पहले ही 40 साल की सजा सुनाई गई थी। इसराइल के गाजा में वहशियाना बमबारी जारी। हमलों में मजीद 63 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। अल-मवासी में महफूज करार दिए गए इलाके पर बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद। इसराइल का खान यूनिस में गजा के कमांड सेंटर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने हमास से मुज़ाकरात के लिए वफ़द को इख्तियार दे दिया। इसराइल की मुज़ाकराती टीम में फौजी और खुफिया एजेंसीज के हुकाम शामिल। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी मुज़ाकरात खतर में होंगे। नाकिस परफॉर्मेंस या कोच से इख्तलाफ। कप्तान रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच से बाहर। आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा की जगह शुभमन गिल टीम में शामिल। आखिरी टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह टीम की क़यादत कर रहे हैं। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की 6 इनिंग्स में सिर्फ 31 रन स्कोर किए।